2014 में ही हुआ है। चेन चैनल्स, जी न्यूज वापस ले आओ। और ये चमक सिर्फ आज प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या ओम बिरला के चेहरे पर नहीं है, ये चमक आज हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर है, क्योंकि अब नई संसद हमें मिलने जा रही है। ट्रूली हर हिंदुस्तानी के चेहरे में गजब की चमक। अरे यार, ये इमेज कुछ चमकती हुई नहीं दिख रही। आईटी सेल वालों से बोलो थोड़ा चमका दे। आज ऐतिहासिक दिन है भाई। यस, दैट्स गुड, दैट्स लाइक इट। अशोक पंडित, अभिजीत मजूमदार, बीजेपी लीडर, क्रिएटली मीडिया, all of them shared this morphed photo of wrestlers because if you can't beat them, you must defame them. Serves them right. मोदी जी का इतना ऐतिहासिक दिन था, धोती पहन के आए थे, बिल्कुल एक विशेष प्रकार की शालीनता के साथ, और ये लोग मोदी जी के इवेंट में रंग में भंग करने चले थे। बड़े आए गोल्ड मेडलिस्ट्स। Now, while the PM was inaugurating the parliament and the media was in a frenzy covering it, our top sportspersons were protesting against the World Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh, जिनका चमकीला चेहरा हमें पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन डे पे दिखा। ब्रिज भूषण के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं। 7 women wrestlers have filed separate police complaints against Brij Bhushan, accusing him of sexual harassment and criminal intimidation. One of these women is supposed to be a minor. Our top wrestlers have been protesting since January, demanding action against Brij Bhushan. Back then, Sports Minister Anurag Thakur met them and said, okay, he'll take note. Then an oversight committee was formed to look into the allegations. This committee was headed by Mary Com and also included Yogeshwar Dutt. Now remember, this is a sexual harassment case, so confidentiality of the complainants is supreme. But in February, Yogeshwar Dutt's coach, Rampal Man, was caught on camera saying that Yogeshwar told him that there is no proof against Brij Bhushan. लेकिन अब प्रूफ कुछ है नहीं। अब हम तो टीवी पर देखते हैं, वो प्रूफ नहीं दे पा रहे, तो ये योगेश्वर कमेटी में है। He also gave out details of the case. Wrestlers then said they have no faith in this committee. Anyway, Oversight Committee report was submitted and we don't know what it says. Meanwhile, Sports Ministry said that there will be fresh elections for WFI chief which Brij Bhushan can't contest. This election has still not taken place. In April, wrestlers returned to Jantar Mantar. They say they have filed complaints against Brij Bhushan, but Delhi police has refused to act upon it. Supreme Court then intervenes and tells Delhi police to file an FIR. All of May, wrestlers protest, demand the arrest of Brij Bhushan. When a minor complains of sexual abuse, there's usually immediate arrest. Wrestlers finally decide to march to Parliament on the day of the inauguration of the new Parliament. They're roughed up, detained. Their protest is broken up. India's first and only female wrestler to have ever won an Olympic medal says that she'll immerse her medals in Ganga as a mark of protest. Meanwhile, हमारे मेल एंकर्स वर रेडी विद देयर नई टूल किट। सबके पास सेम टूल किट था रेसलर्स को डिस्क्रेडिट करने का। टूल किट का टूल नंबर 1, थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं यार, नॉट दैट टूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाउन, आई मीन टूल एज एन स्ट्रैटेजी। टूल किट की स्ट्रैटेजी नंबर 1, टू मच पॉलिटिक्स, सो मच पॉलिटिक्स इन दिस प्रोटेस्ट। एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश में तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब लोग वहां पर बैठकर। They are doing politics, each one of them, and don't support this kind of this thing. रेसलर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अमीश की तरह ट्विटर पे मैच करनी चाहिए। 28, 5, 23 is equal to 56। संयोग #न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसे कहते हैं डेटा जर्नलिज्म। सो गुड। मेरे पास भी एक इक्वेशन है, B + N + D equals। जाओ यहां से। I will never call you. #संयोग। बैक टू रेसलर्स का टू मच पॉलिटिक्स। कौन से लोग हैं इनके पीछे जो ये भोले भाले पहलवानों को या तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो बात योगेश्वर दत्त ने भी कही थी कि इनका इस्तेमाल हो रहा है।
कुछ ताकतें हैं जो मोदी विरोध में या दूसरे विरोध में इन पहलवानों का इस्तेमाल कर रही हैं। पॉइंट बहुत क्लियर है, क्या पॉलिटिकल इवेंट ये हो गया है? दैट्स द होल पॉइंट। सच्चाई ये है कि ये सारे विपक्षी नेता इन खिलाड़ियों का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खिलाड़ियों को ये बात समझ में नहीं आ रही। कितना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। रेसलर्स पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं? वो हक तो सिर्फ मोदी जी का है। ही कैन मेक द होल इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट दैट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टीज, ऑल अबाउट हिमसेल्फ, ऑल अबाउट बीजेपी's पॉलिटिक्स, बट अदर्स कांट डू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स ओनली मोदी जी एंड बीजेपी कैन डू इन नया भारत, बाकी सब नॉट अलाउड. टूल किट का टूल नंबर 2, ये क्या इरैशनल बातें कर रहे हैं रेसलर्स, सो इलॉजिकल दे आर. बिना जांच के जेल में डाल दो बृजभूषण सिंह शरण को. बिना जांच के कैसे जेल में डाला जाएगा? अब आप बताइए, ये रैशनल डिमांड है क्या? दैट्स माय फेयर पॉइंट. क्या ये एक रैशनल डिमांड है? बिना जांच के कार्रवाई कर दी जाएगी क्या? यानी कि शुरुआत हुई थी निष्पक्ष जांच की मांग से, फिर मामला बृजभूषण को पद से हटाने, फिर उसके बाद सांसद पद से हटाने, फिर ओवरसाइट कमेटी में, फिर ओवरसाइट कमेटी में पसंद के लोगों को शामिल करने की मांग, फिर फेडरेशन भंग करने की मांग, फिर एफआईआर की मांग और 28 तारीख को नए संसद भवन के बाहर मार्च निकालने की जिद ने दरअसल खिलाड़ियों से उनकी जमीन ही छीन ली. भाई कुछ लोगों को बृजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर सीधा चाहिए बिना जांच पूरी हुए, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है. ये पूरा नैरेटिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको लगता है माहौल बनाने में काम आएगा. अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर दे बृजभूषण को? उसके अगेंस्ट बस 40 ही तो क्रिमिनल चार्जेस हैं. खुद उसने एडमिट किया है कि वो मर्डर भी कर चुका है, लेकिन वो रिया, उमर या आर्यन थोड़ा है कि शक्ल पसंद नहीं आई तो बस जेल में डाल दो. एक प्रोसीजर होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, कोर्ट कचहरी होती है. ऐसे ही थोड़ा ना बस गाड़ी पलट जाती है किसी की. कम ऑन, दीज गाइज हैव ऑलवेज बिन ऑल अबाउट लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोसीजर. टूल किट का टूल नंबर 3, मेडल बहा दोगे. ऐसे कैसे? मेडल इंसान के शरीर की तरह नश्वर नहीं होते, बल्कि मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी आत्मा की तरह अविनाशी होते हैं. मेडल से इतना प्यार मेडल वाले चाहे पिटते रहें दिल्ली पुलिस से, जिन्हें ना तो अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है और ना ही वायु मिटा सकती है. He's still talking about medals. वैसे टेक्निकली मेडल्स को आग मेल्ट कर सकती है. मेडल्स आत्मा की तरह होते हैं और मेडल्स कभी मरते नहीं. बस अब नेक्स्ट स्टॉप इज बागेश्वर धाम फॉर यू सुधीर. जस्ट गो देयर स्ट्रेट. ये मेडल अमर होते हैं. ये मेडल आत्मा की तरह हमेशा अमर रहते हैं. ये पदक इनका तो है ही, लेकिन भारतवर्ष के हर नागरिक का है, क्योंकि जब इन्होंने पदक जीता था तो हमने भी तालियां बजाई थी. ये क्या बात हुई? तुमने ताली बजाई तो मेडल्स तुम्हारे हो गए? Hate to break it to you सुधीर, but साक्षी would have managed just fine without your तालीज also. जैसे कि एक महान आदमी ने कहा है, कुछ भी बकवास लॉजिक. ये सारा स्क्रिप्ट तुम खुद लिखते हो, तुम्हारी रिसर्च टीम लिखती है सुधीर. वहां न्यूज 18 पे सुधीर का फॉर्मर कॉलीग हैड द सेम टूल किट. देखिए, पहली बात तो ना हर एक को ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो मेडल होते हैं ना, ये मेडल अकेले किसी एक खिलाड़ी के नहीं होते हैं. ये मेडल ना 140 करोड़ भारतीयों, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के होते हैं. किसी एक अकेले खिलाड़ी के नहीं होते हैं. मेडल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के तो हो सकते हैं, लेकिन अमन, अमीश, सुधीर टाइप निकम्मे लोगों के कभी नहीं हो सकते. तुम लोग से जर्नलिज्म तो होती है ठीक से, मेडल क्लेम करने चले. तुम बस वसूली करो. That's what you're capable of doing. बजरंग पुनिया की ट्रेनिंग पर 2,58,00,000. साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे. विनेश फोगाट पर 2,16,00,000 रुपए खर्च हुए. बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे. देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है. पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है. इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं. सुधीर, तुम 100 करोड़ वापस करो पहले वो. This man was actually caught on camera doing वसूली. This guy has been fined repeatedly for spewing hate and fake news. Everything that a sports person embodies: courage, commitment, perseverance, grace. All these qualities go to die on your primetime shows every night, night after night. Your news shows murder these qualities. और फिर तुम कहते हो कि मेडल तुम्हारा है. And who are these guys supporting? A man who's been accused of murder, writing, theft, and criminal intimidation. Just look at the allegations against this man. The FIRs note IPC sections 354, assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.
354A, sexual harassment. 354D, stalking. 34, common intention. Just read the minor's allegations in this case. Holding her tightly, pretending to get a picture clicked, the accused squeezed her towards himself, pressed hard on her shoulder, and then deliberately brushed his hands against her breasts. She clearly told the accused, Singh, she had already told him that she was not interested in having any sort of physical relationship and that he should stop stalking her. Even the wrestlers have said they fear for their lives. The women who have complained also fear for their lives. It's hard speaking up against someone who's been accused in more than 38 cases and still wields major political clout. With the media on his side, what hope can they have? After vilifying women who are complaining against Brij Bhushan, these guys actually want us to believe that they care about women. A 16-year-old girl was brutally, barbarically murdered this week. And we know why this gruesome murder was cynically used by Amish, Aman and Sudhir to further anti-Muslim bile on their shows, to tell their audience कि हिंदू खतरे में है. दिल्ली में तालिबान स्टाइल में जान ली गई है, तालिबान स्टाइल के अंदर जान ली गई है दिल्ली के अंदर. 6 लड़कियों के साथ ही तो लव जिहाद का एग्जांपल हुआ. कलीमुल कह रहे थे 6 लड़कियां क्या होती हैं, हो गया 6 के साथ, बड़ी बात थोड़ी है. इट इज नॉट अ बिग थिंग. 6 के साथ तो हुआ है तो क्या बड़ी बात है. ये दरिंदा, ये सनकी साहिल, सरफराज का बेटा, सन ऑफ सरफराज साहिल, दिल्ली में ना तालिबान या ISIS वाली क्रूरता है